you always have to tell them कि I am feeling this way, that way. Since they know you, the relationship is so strong, they should already understand कि Yeah, they will understand. I think so. yeah, makes sense. Thank you for your comment. Anyone else? I think for me, क्योंकि work is a little hectic, so I would say कि a meaningful relationship is something जहाँ we can pick it back up no matter कितना time बीच में बीत गया हो. Okay. Interesting. Thank you, Devi. Yes. Okay, so now we understood each other's perception of कि meaningful connection क्या हो सकता है. सबके लिए अपना एक खुद का definition है. सबके लिए सबने अपने अपने चीजें जो important है वो highlight की है. जैसे कि एक मैम ने बोला कि बिना बात किए भी बात समझ में आनी चाहिए, तो वो नॉन वर्बली कैसे समझ सकते हैं एक दूसरे को. एंड another person said that caring is very important. So yeah, everyone has their own definition. And It's been seen by Kumarji. yeah, Right. so thank you everyone for sharing. So Let's move. Yeah, to the next ahead. slide. Yeah, so let's define meaningful connection. So जैसे हमको पता है कि कनेक्शंस होते हैं रिश्तों में, चाहे वो किसी के साथ अच्छे हो, किसी के साथ बुरे हो, तो उस बारे में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे, राइट. सो एज रिटन, मीनिंगफुल कनेक्शंस आर रिलेशनशिप्स दैट होल्ड्स इंपॉर्टेंस इन योर लाइफ, राइट. जो ये मीनिंगफुल रिश्ते हैं, जो मजबूत रिश्ते हैं हमारे जिंदगी में, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. और क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम आगे जानेंगे, ठीक है. और ये रिश्ते किससे बनते हैं? ये रिस्पेक्ट से बनते हैं. अगर हम एक दूसरे को समझे, जैसे कि एक पार्टिसिपेंट ने कहा था कुछ देर पहले, राइट, एम्पैथी हो गया, ये सब हमको एक मजबूत रिश्ता बनाने में मदद करती है. और ये मजबूत रिश्ते हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, इमोशनल सिस्टम या फिर मोटिवेशन के तौर पे भी हमारी मदद कर सकते हैं, राइट. आपको क्या लगता है इस बारे में? Okay. Are you asking as an open question or it is for someone else? Anything? It's for everyone. Yeah. So, Any reflections? yeah. Right. Will you please repeat the question? So as discussed here, like meaningful connections are relationships that are important in our life, and they establish through respect, understanding, empathy, right? Which helps us to build a strong support system around us. Emotional support. Also, they might help us with motivation. So this is what a short brief about meaningful connection. What do you all think about this? Anything else जो आप ऐड करना चाहोगे? Now for meaningful connection, Okay. you should have some sort of a common link to establish. Maybe physical common link, maybe spiritual common link, maybe social common link, or maybe mental common link. There has to be a link where the dialogues, exchanging of dialogues can take place, and that can only take us through and take out us from the loneliness which the senior citizens of today are facing the brunt of it. Absolutely agreed. Yeah, thank you. In fact, Umarji, this is a point जो हम थोड़ी देर में cover करने वाले हैं. But thank you so much for your point. Yeah. Thank you. Yeah. So there are also times जहाँ पे हमको ये meaningful connection की जरूरत नहीं होती है. इसके बहुत अलग अलग प्रकार के कारण हो सकते हैं. बहुत बार we just don't want, हमारी इच्छा नहीं है. हम थोड़े से उदास बैठे हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है. मतलब जो है उसकी हमको जरूरत नहीं होती है. और जैसे रिलेशनशिप्स है, ये बहुत बार फ्लक्चुएटिंग भी हो सकते हैं.
जैसे कि अगर आपका रिश्ता किसी के साथ इस टाइम पे बहुत अच्छा है, तो ऐसे हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद उनसे उतना अच्छा ना रहे, उसके बाद वापस से कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा ठीक रहे. सो फ्लक्चुएटिंग. Meaningful connections can be fluctuating, right? And as we know ki a lot of as we all are human beings, we have this tendency to build a meaningful connection with everyone around us. For example, you met someone, you like their ideas, they like your ideas. So tendency होती है, right, कि we should build a relationship with them which is consistent. जैसे कुमार जी ने कहा कुछ देर पहले, right? So this is another angle of meaningful connection. And also one more very important thing, कि these relationships are a lot of times they are based on common goals, purpose, needs. जैसे कि लेट्स से कि आप किसी को कोई ट्रिप पे मिले, आप किसी को कोई एक कॉन्फ्रेंस में मिले, यू नो देम, यू टॉक टू देम, एंड देन यू लाइक देम, योर देयर आइडियाज, जैसे मैंने कुछ टाइम पहले कहा. सो यू टेंड टू डेवलप अ वेरी मीनिंगफुल कनेक्शन एट दैट वेरी टाइम. उस टाइम पे आप दोनों का रिश्ता काफी अच्छा है, बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि ये थ्रू आउट योर लाइफ नहीं रहेगा, विच इज ओके. सो जैसे परसेप्शंस होते हैं लोगों के अलग अलग, वैसे ही कनेक्शंस, मीनिंगफुल कनेक्शंस भी हो सकते हैं डिफरेंट. व्हाट डू यू थिंक, दिव्या? Yeah, I completely agree with Hitesh. And in an absence of a meaningful connection, क्या होता है? Let's explore that as well now. So, जब हमारी लाइफ में एक मीनिंगफुल कनेक्शन या कनेक्शंस नहीं होते या बहुत कम होते हैं, तो तब अपनी लाइफ स्पैन जो होती है वो शॉर्ट हो जाती है. Because when you have a strong social connection, it can contribute to a longer lifespan. And by research, it has been shown कि जो इंडिविजुअल्स के अपनी क्लोज फ्रेंडशिप्स होती है और अच्छे सोशल नेटवर्क्स होते हैं, उनकी हेल्थ, मतलब मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ उतनी ही ज्यादा अच्छी होती है. फॉर एग्जाम्पल, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जो अपने खुद की कम्युनिटी प्रोग्राम्स हो गए, जैसे कि रिलीजियस होने दो, या फिर फिजिकली फिट रहने के जो प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर सोशल इवेंट्स जब अटेंड करते हैं, उससे सोशल नेटवर्क्स जब बढ़ाते हैं और क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, उससे उनकी क्वालिटी ऑफ हेल्थ जो होती है वो काफी हाई हो जाती है. एंड सेकेंडली, जो अपने हायर ब्लड प्रेशर जो होता है, हेल्थ रिस्क में आती है वो. तो जब हम गुड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जब अच्छी बॉन्ड क्रिएट करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो अपनी स्ट्रेस रेगुलेट हो जाती है, जिसके कारण अपना ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है. और रिसर्च के हिसाब से भी बोला गया है कि जो यंग पॉपुलेशन है, अगर उन्होंने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और अपने हॉबीज हो गए या फिर इंटरेस्ट को मेंटेन किया अपने क्लोजर रिलेशनशिप, मतलब लाइक अपने क्लोजर फ्रेंड सर्कल के साथ, तो उनकी भी रेड्यूस लेवल ऑफ स्ट्रेस हो जाती है, और कार्डियोवैस्कुलर जो उनका फंक्शनिंग होता है वो हेल्दी होता है. एंड फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस जो होती है, अभी ये काफी नेचुरल है. जब आपके आजू बाजू जो लोग हैं, उनके साथ अगर आपका मीनिंगफुल कनेक्शन नहीं रहा, तो आपको लोनली भी फील हो सकता है. और अगर कुछ ज्यादा ही लोनलीनेस फील हुआ, तो इट्स एज, मतलब रिसर्च के हिसाब से लोनलीनेस इज इक्वल टू हैविंग 15 सिगरेट्स अ डे. सो 15 सिगरेट्स अ डे जब हम स्मोक करते हैं, उसका हमारी बॉडी पे मेंटली फिजिकली क्या इफेक्ट होता है, इट इज वेरी मच इक्विवेलेंट टू बीइंग एक्सट्रीमली लोनली. And we can also like overcome this when we start networking and surrounding ourselves with people who think like us, right? And then moving on to feelings of unhappiness. Of course, like loneliness feel हो रहा है, तो काफी जायज है आपको कि unhappiness भी feel हो. तो genuine connection ये जो हम बनाते हैं, उससे we feel happier and healthier, of course, like we mentioned before. And काफी research हुआ है जहाँ पे social जो relationship है, वो physical और mental well-being पे काफी impact करता है. तो वो obviously
ओके, सॉरी। हाँ, सो जब हम सोशल कनेक्शंस को बढ़ाते हैं तब हमारी खुद की सेल्फ एस्टीम भी बढ़ती जाती है, बिकॉज अभी हम जितने लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं उनकी परसेप्शंस होती है, उनसे जब डाइवर्स अलग अलग चीजों पे जब बातें होती है तो नई नई चीजें सीखने मिलती है, खुद के बारे में मतलब सीखना आता है, जिसके कारण हमारा सेल्फ एस्टीम भी बढ़ता है। तो जैसे कि अभी most of us are like working professionals right now, so building a genuine connection with your colleagues and engaging in like team activities या फिर being like a good support system for your working colleagues has also like higher job satisfaction, जिससे जो आपकी कभी कभी वी फील कि अरे क्या हमेशा जॉब का स्ट्रेस होता है या फिर जॉब में काफी कभी कभी दिक्कतें आती है, तो जब हाँ, तो जब अपने कलीग्स के साथ हमारी अच्छी और जेन्युइन कनेक्शन होती है तो वो स्ट्रेस काफी हद तक हम कम कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चंस है या फिर कुछ कंफ्यूजन है, प्लीज फील फ्री टू लेट मी नो एंड आई विल लव टू एक्सप्लेन विथ मोर एग्जांपल्स एंड या दिव्या में भी यहाँ पे हम लोग एक आध चीज ऐसा भी और देख सकते हैं कि इस प्रकार के कनेक्शंस के थ्रू बहुत बार हम उम्र लोगों में एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को, कि ये प्रॉब्लम मतलब मुझे अगर मेरे एज के हिसाब से ये प्रॉब्लम हो रही है और मेरे साथ वाले व्यक्ति को भी, तो अकॉर्डिंग टू एज यू सेड मेंशन की सीनियर्स का ग्रुप अगर हो तो उनमें शेयरिंग ऑफ प्रॉब्लम will make the person feel कि okay there are other people like yes. me। जैसे ए ग्रुप जो है अल्कोहल एनोनिमस का, तो कि अगर एक केस में उनको अल्कोहल से डी एडिक्शन की तरफ जाते हुए इफ दे फील कि अरे फिर से रिलैक्स हो गया, लेकिन इफ दे आर पार्ट ऑफ दैट ए ग्रुप they come to know that there are other people as well who can go into relapse and again can try for better control. So these things bring little more reassurance about whatever you are trying or whatever problems you are facing in the life. yeah, definitely anonymous का हो गया, they have shared experiences जिससे bond create होती है, जिससे हम we can establish a meaningful connection, and it is of course one of the ways in which we can deepen and establish meaningful connection and understand beyond the boundaries। कभी कभी काफी gap आ जाता है तो having similar experiences can bridge that gap। yeah so anyone else, किसी को और कुछ ऐड करना है या फिर क्वेश्चन है? Okay, so we'll go to the next part of our presentation। yeah so how can you build so how can you build meaningful connections? क्या आप कैसे मीनिंगफुल कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हो आपके हिसाब से? हाँ, राइट, जैसे हमने कहा था ये काफी इंटरैक्टिव सेशन होने वाला है, तो आप भी अगर आपकी राय दोगे तो हम समझ सकते हैं ज्यादा अच्छे तरीके से। राइट, सो आपके हिसाब से क्या हो सकता है एक मजबूत रिश्ता है, फिर एक मीनिंगफुल कनेक्शन जिसका एक बहुत अच्छा मतलब हो और जो इम्पोर्टेंट हो अपने लाइफ में? तो आप शेयर कर सकते हो। दिव्या हितेश, मेरी तरफ से एक सजेशन है कि शायद जब डिस्कशन करें तो आप आपका स्क्रीन शेयरिंग बंद कर सकते हैं ताकि आप लोग ज्यादा अच्छे से ऑडियंस को देख सकते हैं और बाकी लोग भी एक दूसरे को देख सकते हैं। ओके ओके अगर किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आया है, तो आप बिल्कुल
बोल सकते हो रिपीट करने के लिए। ओके, क्या आप कुछ एक आध हिंट दे सकते हैं इस प्रकार के रिलेशन? सॉरी डॉक्टर रूपा, आप म्यूट पे थे। सो ज्योति जी, आप उन्होंने पूछा कि आप थोड़े एग्जांपल्स दे सकते हैं क्या? ओके, मीनिंगफुल कनेक्शंस। सो जैसे हमने, कैन यू ओपन द स्लाइड? या हाँ, तो हम कैसे मीनिंगफुल कनेक्शंस बिल्ड करेंगे, इसके लिए जो स्लाइड्स है, तरीके है, एग्जांपल्स है, वो आगे की स्लाइड्स में ऑलरेडी है। तो पहले हम अपने पार्टिसिपेंट से जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से क्या है, ताकि हमें भी थोड़ा मदद मिल सके कि आप कैसे देखते हो मीनिंगफुल कनेक्शंस को। ठीक है, सो डेफिनेटली जो एग्जांपल्स ये हम बिल्कुल थोड़ी देर में समझेंगे। ये रिश्ते हमारे दोस्तों के साथ हो सकते हैं, हमारे कोलिग्स के साथ हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स के साथ हो सकते हैं, माँ बाप के साथ हो सकते हैं। या फिर कभी आप ट्रैकिंग करने गए और वहां पे बिकॉज ऑफ सेम हॉबीज यू वर एबल टू हैव अ कनेक्शन विद पीपल देयर। या फिर कॉन्फ्रेंस, जैसे कि अभी रिसेंटली वी हैड अ मेडिकल कॉन्फ्रेंस, तो तभी भी हैविंग डिस्कशंस अबाउट समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट कैन आल्सो लीड टू मीनिंगफुल कनेक्शन. Yeah. So sometimes we always think that it is only streamlined to our friends and families or colleagues, Yeah. but it is very vast. Yeah. So we can always broaden our Yes. perception ki कहाँ आपने बिल्ड किया हो सकता है मीनिंगफुल कनेक्शन. It can be as simple as आप तो किसी के साथ बैठे हो, लेट्स अज्यूम इन द बस जर्नी, इन अ ट्रेन जर्नी, आप एक टॉपिक लेके आते हो, लेट्स से क्रिकेट। तो लेट्स अज्यूम कि आप दोनों को क्रिकेट में काफी इंटरेस्ट है, सो वहां पे भी आपका कनेक्शन बन सकता है। सो फॉर दैट वन पर्टिकुलर मोमेंट हम दोनों को पता है कि ये रिश्ता जो है अभी जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ कॉमन गोल्स, कॉमन इंटरेस्ट। सो ये भी हो सकता है। Yeah. So if you are more comfortable in putting us a message, so you can use the chat box as well. आप चैट हाँ, chat box पे भी आप बता सकते हैं. तब तक हम आगे बढ़ते हैं and we'll keep checking the chat box if there's any message from you. Okay, so first is how can we have a meaningful connection. So the first point that comes to our mind is personal narratives. And what are personal narratives? When people share their personal experiences and they narrate it to you, so that's how we say personal narratives. And while we share our personal experiences, the first thing that we जब जो पहली चीज है जिस पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं वो है इमोशंस. तो ये व्हेन वी शेयर अपने जो शेयर एक्सपीरियंसेस जब हम शेयर करते हैं, तो जो लिसनर होता है दे एस्टैब्लिश अ डीपर कनेक्शन बिकॉज दे आर एबल टू अंडरस्टैंड आवर इमोशंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी एक काफी डिफिकल्ट सिचुएशन से आप गो थ्रू किए हो, तो आपने ये जब अब किसी फ्रेंड को या फिर जिससे आप ज्यादा क्लोज हो, कंफर्टेबल हो, जब आपने ये शेयर किया है, तब वो इमोशंस उन तक पहुंचे. तो पर्सनल नरेटिव्स आर हेल्पफुल इन एस्टैब्लिशिंग अ कनेक्शन वेयर यू कैन reach your emotions to them. हाँ, second point है कि value. So when we share our personal experiences, अपनी story acknowledge की जाती है, respect की जाती है, value की जाती है. So when we do these things, when a person is sharing their personal stories with us, we tend to do these three things. That is acknowledge and respect and value. And when we do active listening, which was covered in our last seminar, we show interest, right? अब हम इंटरेस्ट दिखाते हैं जब हम मन लगा के ध्यान से जब पूरी बात सुनते हैं तब. एंड वी कन्वे द इम्पोर्टेंस
of their experiences when we properly pay attention and listen to them. And secondly is when we create that kind of a supportive environment, उनकी जो authenticity है, they don't have to pretend to be someone else or something else for us. We have created a deep connection where we are, increasing the trust and an ability for the other person to be vulnerable, right? And then yeah, exactly. So अभी जो पहले बात हुई थी कि जब shared experiences होते हैं तो ये जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस, पर्सनल नरेटिव्स जब हम शेयर करते हैं, उससे वी ब्रिज द गैप between two people and recognize the value of each other's perspective, and we contribute to a more inclusive society, like where we are understanding and accepting of each other and our experiences. And also lastly, ये जो पर्सनल नरेटिव होते हैं ये काफी ट्रांसफॉर्मेशनल होते हैं, बिकॉज व्हेन वी ट्रूली एंगेज विद समवन्स स्टोरी, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी ब्रॉडन हो जाता है, which leads to personal growth as well, because we get a lot to learn from each other's personal experiences. Yeah. Okay. Moving on to the next slide. So now diversity, right? Diversity का मतलब क्या होता है? Diversity यानी विभिन्न प्रकारों के इंसान, विभिन्न प्रकार की सोच, उनका बिहेवियर। सो इसी को थोड़ा सा समझ के हम ये स्लाइड है मेरी, ठीक है, इसमें जैसे हमने लिखा यूनिक एक्सपीरियंसेस दैट इज एम्ब्रेसिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे फूल है, राइट? देयर आर लॉट ऑफ फ्लावर्स। अभी ऑल हम सबको पता है कि ये फ्लावर्स है, बट इनके जो कलर्स है वो अलग है, उनके पैटर्न्स अलग है, बट एट द एंड ये सब फूल है, राइट? ये सारे फ्लावर्स है। हम इनकी जो खूबसूरती है उसको हम देख सकते हैं, इनके कलर्स कितने ब्यूटीफुल है वो देख सकते हैं। वैसे ही जब हम रिलेशनशिप को मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करते हैं, जब हम उनके एक्सपीरियंस है, उनका परसेप्शन है, उनको अगर समझने की कोशिश करेंगे, समझने की, एक्नॉलेज करने की, तो ऐसे देखा जाता है कि जो चांसेस है कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो बढ़ सकते हैं। ओके, उसी को आगे लेते हुए दूसरा पॉइंट, दैट इज डेप्थ एंड वैरायटी, सॉरी, एनरिचिंग द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस इन डेप्थ। जो एक्सपीरियंस है सामने वाले का, राइट, वो बहुत अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, समझो एक पिन लिया मैंने, एक सुई लिया, ठीक है, वो मैंने खुद को पॉइंट की और दिव्या को पॉइंट की, हम दोनों को सेम पॉइंट किया मैंने, इसको ऐसा नहीं कि इसको ज्यादा जोर से और मुझे थोड़ा सा हल्का किया है, राइट? बट हमारा जो तरीका होगा बताने का काफी अलग होगा। जैसे कि मुझे बहुत जोर से लग सकता है, दिव्या को कम लग सकता है, इवन दो मैंने सेम इंटेंसिटी से पॉइंट की दोनों को। वैसे ही जो एक्सपीरियंसेस होते हैं अलग अलग व्यक्तियों के बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, और उसको अगर हम एनरिच करेंगे, उनको वैल्यू देंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, तो ये भी हमारे चांसेस बढ़ा सकते हैं एक रिलेशनशिप को काफी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और जब हम ये आइडियाज को समझते हैं, दूसरों के परसेप्शंस को समझते हैं, वो बहुत बार हमको भी एक सोच में डाल देते हैं कि इनका आइडिया काफी अच्छा है, कि हाँ ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था। ओपनिंग डोर्स टू न्यू आइडियाज। जैसे कि हमारा जो मेडिकल कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पे हमने एक स्टॉल पे एक्टिविटी कंडक्ट की थी जिसका नाम था रंगीन चश्मा। वहाँ पे हम अलग अलग प्रकार के कलर्स के चश्मे पहनाते थे, और पार्टिसिपेंट्स कहते थे कि हमको दुनिया अलग अलग दिख रही है, कलर्स में दिख रही है, जैसे कि रेड हुआ, ब्लू हुआ। उसका बेसिकली आइडिया था कि अगर हम थोड़ा सा परसेप्शन को चेंज करते हैं, थोड़ा सा किसी और के परसेप्शन से सोचने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारे लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। और जब हम ये जो एक्सपीरियंस है उनको समझते हैं, ये हमको ग्रो करने में भी मदद कर सकता है, और सामने वाले को भी लग सकता है कि जो हम जो बता रहे हैं उनको, जो हम हमारा ओपिनियन रख रहे हैं, राइट, तो वो जो मेरा पार्टनर है सामने वाला, वो उसको वैल्यू कर रहा है, उसको अंडरस्टैंड कर रहा है।
तो ये कुछ स्टेप्स है जो बहुत मदद कर सकते हैं हमारी इन्फोलो की तरह, जैसे कि, राइट। सो ये छोटा सा टॉपिक है, डाइवर्सिटी कैसे हेल्प कर सकती है रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए। किसी को कुछ क्वेश्चन होगे तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। या फिर आपको कुछ शेयर करना हो, आपके कुछ थॉट्स आए हो, या फिर हमने कुछ मिस कर दिया हो, आप चाहते हो कि ये भी पॉइंट हो सकता है कि इसमें आ सकता है, तो प्लीज फील फ्री टू डू दैट। Any thoughts, any reflections? चलिए, ठीक है। So, 4 slides are left. I think आप सब एक 5 मिनट का ब्रेक लेना पसंद करोगे? एग्जैक्टली हम 5 मिनट के बाद मिल सकते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होके, कुछ किसी को कुछ पानी पीना है तो। ओके। सो अभी 5:40 हो रहा है, एग्जैक्टली 5:45 को वापस मिलेंगे। ओके। हाय। ओके। सो ओके। एज वी डिस्कस्ड, डाइवर्सिटी के बारे में हमारी बात हुई। इसके रिगार्डिंग किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो आप हैंड रेज कर सकते हो या फिर आप बोल सकते हो अभी। क्या ऐसा हो सकता है डाइवर्सिटी कैन क्रिएट प्रॉब्लम इन communication or developing a good healthy relationship? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। डाइवर्सिटी, जैसे आपने कहा कि देर आर टाइम्स कि हमको बहुत बार एक दूसरे की बात एग्री नहीं करेंगे हम, और हम कहेंगे कि नहीं, आपकी बात सही नहीं, मेरी बात सही है। इसकी वजह से आपने जो कहा, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होने के चांसेस है। इस वक्त हमने जो इसके पहले स्लाइड डिस्कस की थी, वहां पे थोड़ा सा वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। और जैसे हमने पहली स्लाइड में भी देखा था, व्हाट इज मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स और कैसे बिल्ड हो सकती है वो। तो ये जो मिस कम्युनिकेशन है, या फिर जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर डिसएग्रीमेंट हो सकता है, इसको थोड़ा सा हम हो सके तो अवॉइड कर सकते हैं। और कैसे नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, चलेगा। पर हम उसको अगर आगे लेके जाएंगे तो देर आर चांसेस कि क्लेश हो सकते हैं। और उसके अलावा हम जो रिलेशनशिप्स बनी भी हुई हमारी अब तक, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, राइट। सो दिस इज, डज दिस यू नो आंसर योर क्वेश्चन, मैम? Yes, yes, definitely. And I think जो हम लोगों ने पिछले सेशन में भी और पिछले स्लाइड में भी डिस्कस किया कि एक्टिव लिसनिंग मतलब दोनों को, मतलब जो भी अगर दो लोग इन्वॉल्व हैं कोई कम्युनिकेशन में, तो एक दूसरे को मतलब सिर्फ मेरा सुनो ये अप्रोच नहीं रखते हुए एक्टिव लिसनिंग टू द अदर पर्सन, ओपन अप्रोच टू अंडरस्टैंड कि सामने वाले का क्या कहना है या क्या सिचुएशन है, वो थोड़ा सा स्पेस अगर क्रिएट कर सके तो दैट डाइवर्सिटी कैन मेक दैट कम्युनिकेशन एंड दैट रिलेशन मोर एनरिचिंग। बट अगर मैं ईगो ये चीजें आगे आ गई तो नहीं रिलेशन आगे डेवलप होगा। थैंक यू फॉर योर पॉइंट, मैम। आई गेस ये जो आपने पिछले सेशन का बताया अभी, दैट आई थिंक बहुत लोग जो पार्टिसिपेंट्स पहले के हैं उनको कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा कि हम क्या एग्जैक्टली
बताने की कोशिश कर रहे हैं और रूपा मैम के बताने की कोशिश कर रहे हैं. सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड. Empathy. So Abhi, since we are already 29 people here, तो एक छोटी सी हम एक्टिविटी करते हैं, ठीक है. एम्पैथी की एक्टिविटी है यहाँ पे. तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है, ठीक है. तो हर एक को आप में से जो भी अगर चाहे तो एक एक सेंटेंस आपको रीड करने हैं. और उसको अगर आपको कोई इंसान ये सेंटेंस बोलता है तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे. बस यहाँ पे ट्विस्ट है. यहाँ आपको यहाँ पे ना तो उनको सजेशन देना है, ना तो उनको कुछ एडवाइस देनी है. जस्ट आपको रिस्पॉन्स करना है, ठीक है. तो कौन करना चाहेगा पहले. ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आप सबको मजा आएगा. तो या तो हमको क्या करना है, सेंटेंस रीड करना है. आपको सेंटेंस रीड करना है. आपके मन में करोगे तो भी चलेगा. अगर आपको कोई इंसान ये सेंटेंस कहता है तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे. बट आपको यहाँ पे जब आप रिस्पॉन्ड करोगे आपको ना ही एडवाइस देना है और ना ही सजेशन देना है कोई, ठीक है. अगर आपको चाहिए कि ये कैसे करना है, इसका एग्जाम्पल चाहिए, तो मैं और हितेश अभी आपको करके दिखा सकते हैं. तो जैसे कि आई गो विद द फर्स्ट, इसके बाद अच्छा ठीक. I'll go with the first example, okay? Hitesh, मैं like just recently I have like had babies और मेरे को नींद ही नहीं आती है. इतनी सारी responsibilities है. मतलब I have to take care of the baby and then मतलब पूरी रात she cries और मेरे को बहुत ही थकावट महसूस हो रही है अभी. एंड बहुत डर भी लग रहा है कि मैं आगे जाके कैसे संभाल पाऊंगी, मेरे से होगा या नहीं होगा. जी. तो दिव्या, आप ऐसे लग रहा है कि आप काफी परेशान हो. आप जो जिम्मेदारी आ गई है आपके ऊपर, इसकी वजह से आप काफी थके हुए लग रहे हो और आपको एक चांस नहीं मिल रहा है कि आप कुछ आराम कर लो अपने आप, अपने लिए. और कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रहा है कि मैं कैसे ये सब मैनेज करूंगी. और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप चिंतित भी हो कि फ्यूचर में कैसे होगा अगर ऐसे चलता रहा तो. सो ये एक एग्जांपल है. गंगाधर जी, आपने हैंड रेस किया था, तो आप फर्स्ट वाला रीड करना चाहोगे. उन्होंने ये चैट में लिखा कमेंट है मैंने किया है जी. जी. ओके. He responded very nicely. Yeah. सो गंगाधर जी कह रहे हैं कि दिस New change can be overwhelming. ओके. That's difficult. Why don't you hire someone to look after the kids? That will be again giving a suggestion. Okay. सो गंगाधर जी ने कहा कि काफी ओवरवेलमिंग हो सकता है. ये आप बहुत ज्यादा हो सकता है आपके लिए. एक बोलते हैं ना कि सर के ऊपर पानी चला गया, तो वो वाली फीलिंग आ सकती है. सो यहाँ पे कोई कह रहा है कि दैट्स व्हाई डोंट यू हायर समवन. मतलब ये कह रहे हैं कि आपके लिए मुश्किल होगा, आप किसी को रख लीजिए काम पे, राइट. तो ये जैसे हमने कहा था कि इसको यहाँ पे आपको एडवाइस नहीं देनी है या फिर सजेशन नहीं देना है. बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमसे रहा नहीं जाता है और हम तुरंत एडवाइस दे देते हैं, हम सजेशन दे देता है. अब हमारा जो इरादा होता है वो बहुत अच्छा होता है कि सामने वाले का दुख कम हो, सामने वाले को तकलीफ कम हो. पर बहुत बार वी डोंट ट्रूली अंडरस्टैंड कि सामने वाला, हम जो सजेशन दे रहे हैं वो सामने वाले के लिए ठीक है कि नहीं है. क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, हमको पता नहीं कि ये जो इंसान है ये अफोर्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या फिर ये इंसान को और कोई परेशानी आ सकती है क्या, राइट. ये जो एडवाइस देना हो गया, सजेशन देना हो गया, बहुत आसान होता है हमारे लिए. बट ये जो चीज होती है कि सिर्फ एम्पैथी क्रिएट करना, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है. और पर ये बहुत बार हेल्पफुल भी हो सकता है. और ये कैसे डेवलप करनी है हम थोड़े से आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे. यस धृति, आपने हैंड रेस किया है.
हम कैसे रोक सकते हैं अपने आप को एडवाइस देने से? मतलब लिटरली यहाँ लिखा हुआ है स्लाइड में कि नो एडवाइस, बट स्टिल इमीडिएटली मेरा रिएक्शन था कि एडवाइस देना चाहिए, कि क्या मदद कर सकते हैं। ओके, तो क्या बता सकते हो कि आपको इतना अर्ज कैसे आ रहा है कि आप एडवाइस दे ही दो? क्या चैलेंज फेस कर रहे हो आप? कि कोई शेयर कर रहा है तो ऐसे लगता है वो लोग शायद इसलिए शेयर करे कि उनको मेरी मदद चाहिए, या आई एम, ऐसा वो प्रेशर आता है क्योंकि अगर कोई तकलीफ में है तो कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, ये कैसे डील करना चाहिए? एग्जैक्टली, जैसे मैंने कहा कि हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा हो सकता है, सेफ हो सकता है, केयरिंग हो सकता है, कि हमको उनकी मदद, इम्पल्स होता है कि निकल ही जाता है। बट बहुत बार जैसे हमने कहा कि हमको नहीं पता कि उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है उसके पीछे, पूरी स्टोरी नहीं पता हमको उनकी, हम उनको पूरी तरीके से नहीं जान सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी कोई अननोन इंसान मुझे आके ये सारी चीजें कह रहा है, मैं बोल सकता हूँ ठीक है, आप आपके हस्बैंड को बोल दीजिए, आपके घर में आपके सास ससुर हो गए उनको बोल दीजिए, बट वी डोंट रियली नो कि उनके सास ससुर उतने कोऑपरेटिंग है कि नहीं है, राइट? सो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि वाई वी शुड नॉट एडवाइस और सजेस्ट पीपल। जी सागर जी, आपने हैंड रेस किया है। Hi. Maybe we can ask some more questions that could rather like that could help them think more of that certain problem. Yeah, of course. Yes. Find a Reflecting, solution with them. yeah, helping them think about their problem from a different perspective, या फिर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, वो भी काफी बार हेल्पफुल हो सकता है। Right. So, continuing to this, Sagarji, would you like to read and respond to the first sentence? I could try. Yeah. But the जो challenge है, जो twist है, वो आप please देख लीजिएगा, और आप बस no suggestion or advice. So, yeah. Right, I might not be the best person, but I'll try. Oh, that's great. That's great. Please. I am a new parent, and the sleep deprivation and constant demands are overwhelming. Maybe I could ask a question here. What is the most troubling part of your situation right now? And is there any solution you can find out near you? Okay. And I would need your help to know what could be the best response here. Yeah, so there is no correct or any wrong response to this. But one thing, jo abhi you have tried and it is very awesome that you understood the word troubling. If you notice in this sentence, the word troubling was never mentioned. But you understand, but you understood because you could empathize with this sentence, with the person maybe, right? Yeah. So this is what we call empathy without giving advice. Without giving advice. And in the second sentence, as you told, can you find someone who could help you with solution? That is also very interesting. यहाँ पे we are asking or empowering the person to look after some help if they can, in anything in within their possibilities or surroundings. So yeah, that's also really amazing. Thank you for your input. I think और किसी ने hand raise किया था. Yeah, किरण जी ने hand raise किया था. Ma'am, if you would like to share, please go ahead. Yeah, I want to say कि अगर हेल्प उनको चाहिए तो वो खुद मांगेंगे, मतलब हमेशा हम सबको जाके हेल्प ऑफर नहीं कर सकते। Yeah, definitely. मतलब if somebody sharing something, हमेशा उनको ना सॉल्यूशन चाहिए होता है ना हेल्प चाहिए होता है। They just want to get it off their mind, like बोलकर अच्छा लगता है। Yeah. कि तुम हमेशा, तो अगर उनको हेल्प चाहिए आपसे तो वो लोग बोलेंगे। आप इतने क्लोज हो तो यू कैन जस्ट गो एंड डू इट इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हाट कैन आई डू फॉर यू। Yeah. तो फिर अगर हेल्प ऐसा ही है कि समटाइम्स इट इज मेनी टाइम्स यू जस्ट वांट टू टॉक इट आउट,
Yeah. not want a solution or anything. कि solution भी नहीं, कि solution उन्होंने खुद सोचे हुए होते हैं सब. They know कि ये मेरे लिए नहीं काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है. Yeah. Sometimes they've overlooked something. वो एक perspective बात करने से आ जाए उनको. Yeah, they will just feel good by sharing कि हाँ, I am going through this. I am going through this, and maybe just hear me out. Yeah. Hear me out. Sometimes, Exactly. sometimes we just need someone to understand what Yes, we are going through. So, yes. Just yeah. that is enough. Like that is the biggest help you can give. Yeah, Exactly. definitely. That is what your helpline does. Oh, yeah, Thank you. yeah. So, very interesting perceptions. आप यहाँ पे कह रहे हो कि sometimes people do not have a lot of people around them जो उनकी बात सुन सके. तो they just want to someone to listen to them and understand. सोल्यूशन नहीं चाहिए, उनको भी पता है कि ये सोल्यूशन नहीं दे सकते हैं मुझे, राइट? जैसे आपने कहा कि उनको भी पता है कि दे कैन नॉट लिटरली सॉल्व माय प्रॉब्लम, बट दे नहीं, और कैन. बहुत बार क्या होता है, जो तुम्हारे बहुत पास है उनको, वो तो तुमको रोज उस प्रॉब्लम से देख रहे हैं, तो उनका कहना होता है व्हाट्स न्यू, कि ये तो रोज की बात है, तुम्हारा बच्चा रोज नहीं सो रहा है, तुम रोज थकी हुई हो, तो talk something new. एग्जैक्टली So एग्जैक्टली. many times you need someone who will listen to you, just listen to you, because आसपास वाले तो वो सब देख रहे हैं, तो उनके लिए वो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि it's all right, this is going on every day, so there is nothing new for them to talk about it. या अब जो हेल्प है घर वाले कर चुके होते हैं, तो it is something कि मतलब if she is feeling so this thing, तो या जॉब के लिए भी जो ढूंढ रहे हैं कि रोज फ्रस्ट्रेटेड घर पे आ रहे हैं, हाउ लॉन्ग कैन दे हैव एम्पैथी और सिंपैथी विद देम Yeah. who are dealing with it every day. The others are also dealing with this problem every day. तो उस टाइम पे you need somebody from outside, because every day you cannot, कि वो रोज घर आ रहा है कि भाई मुझे आज भी जॉब नहीं मिली, मैं क्या करूं. तुम कुछ नहीं बोलोगे तो उसको बुरा लगेगा, you are not reacting, and if you say something it is going to be Yeah. Yeah. Hmm. Thank you for your point, किरण जी. आई थिंक आपको भी काफी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है कि हाउ डू काउंसलिंग सेटअप वर्क और कैसे एम्पैथी क्या होती है. सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. कैन यू ओपन द चैट बॉक्स? Oh, yeah, I'll do that. गंगाधर जी पूछते हैं, हाउ टू सेंस इफ समवन इज हेजिटेटिंग टू आस्क फॉर हेल्प. ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग. हम कैसे समझ सकते हैं कि किसी को मदद की जरूरत है पर वो हेजिटेट कर रहा है, हिचकिचा रहा है मदद मांगने के लिए. तो पहले हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो क्यों हेजिटेट कर रहा है. इसके रीजंस हो सकते हैं बहुत कि किसी को लग सकता है कि हेल्प मांग के क्या ही हो जाएगा, या फिर अगर मैं कुछ हेल्प मांगूंगा तो ये देगी नहीं मुझे. तो इस टाइम पे में भी हम अगर उनको जाके पूछ सकते हैं कि नॉट डायरेक्टली कि आपको क्या प्रॉब्लम है, बताइए क्या हो रहा है. तो मे बी हम थोड़ा सा सेंसिटिवली जाके पूछते हैं कि आप थोड़े से रोज के मुकाबले आज आप थोड़ा सा उदास लग रहे हो और आपका मूड ठीक नहीं लग रहा है, क्या हुआ, सब ठीक है क्या, फिर कुछ भी. और ये अभी सुनने में हमको बहुत नॉर्मल लग सकता है, बट कोई इंसान जब सच में बहुत तकलीफ में है और वो जता नहीं पा रहा है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है. ओके, तो गंगाधर जी, डज दिस आंसर योर क्वेश्चन? Here I will like to add one more thing, Divya. Yes, yes. जो अभी किरण जी ने कहा, उसमें on one side, yes, the family is seeing you every day struggling with the problem. जैसे कहा कि जॉब पे आ रहे हैं, आज भी नहीं मिला जॉब, नहीं मिला, ये बोलने के बाद फैमिली कुछ ज्यादा नहीं कर सकेगी. ये एक प्रकार की सिचुएशन हो सकती है. कभी कभी ऐसा भी होता है, स्पेशली करंट सिचुएशन में तो कई फैमिलीज में ऐसा हो जाता है कि फैमिली साथ में रहते हुए अपने अपने
अपनी इंडिविजुअल दुनिया में इतने एनग्रॉस होती हैं कि अपने ही घर के दूसरे इंसान की प्रॉब्लम का रियलाइजेशन नहीं होता। एंड दैट कम्युनिकेशन थ्रेड इन फैमिली पीपल आल्सो इज I'm समटाइम्स not sure I understand. तो ऐसे टाइम पर हमें अपनी फैमिली को ये बताना कभी कभी जरूरी हो जाता है विद दैट कम्युनिकेशन एग्जैक्टली आई एम गोइंग थ्रू दिस, मतलब कि मैं मेरे रूम में जाने के बाद मेरा बच्चा रात भर रोता है इसलिए मैं सो नहीं पाई, ये अगर मेरी फैमिली को पता चलता है देन मे बी, मतलब ऑफकोर्स वी आर अंडरस्टैंडिंग कि हमको यहाँ पे सजेशन नहीं देना है वगैरह, पर एट द सेम टाइम we also don't mean to say that we want to stop each other from communicating in between our close people as well. ओके Because sometimes it may happen कि आपके मतलब आपने एक्सपेक्ट किया कि मेरे स्पाउस ने मेरा सफरिंग देखना चाहिए था, समझना चाहिए था, मुझे हेल्प प्रोवाइड ऑफर करनी चाहिए थी, लेकिन आपसे क्या एक्सपेक्ट आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये सामने वाले को नहीं पता चला। तो मतलब दिस मे गो इनटू टोटली डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर, बट दिस आल्सो इज वन पार्ट ऑफ बीइंग टुगेदर कि वी नीड टू वर्बलाइज एट टाइम कि ये ऐसा हो रहा है। सामने वाला इंसान दोनों चीजें हैं कि जहाँ जैसे किरण जी ने कहा जहाँ हेल्प ऑफर कर सकते हैं और इतना क्लोज पर्सन है कि हेल्प ऑफर कर सकते हैं, वो अपने आप ही आगे होके हेल्प ऑफर करेंगे। करना चाहिए ये भी बोलना चाहिए, बट ओके चाहिए वाला पार्ट साइड में रखें, तो हेल्प ऑफर करेंगे। इफ नथिंग एल्स एटलीस्ट कि हाँ मैं देखती हूँ कि तुम इतना बिजी होती हो, ये बोलने से भी उस मदर को जो बच्चे को संभालते संभालते कि अरे मैं अकेली परेशान और मैं ऐसे, तो नहीं कोई सामने वाला मेरी चीज को देख रहा है, ये भी एक होता है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें भी कई बार मैटर करती है बाय शेयरिंग टू योर नियर एंड डियर वन, ऐसा मुझे लगता है। I'm not contradicting her point, but it has its own importance as well. Really insightful comment, डॉक्टर रूपा। यहाँ पे एज डॉक्टर रूपा बोल रहे हैं कि बहुत बार सिर्फ हेल्प करने, पूरी हेल्प नहीं करोगे तो भी चल सकते हैं, जस्ट एक्नॉलेजिंग कि जस्ट ठीक है आप ये जो चीजें कर रहे हो ये मुझे दिख रही है, आई नो आप इतनी मेहनत कर रहे हो, दैट्स ऑल्सो इनफ, वो भी बहुत होता है। सो यस, थैंक यू सो मच। सो सेकेंड सेंटेंस जो है, आई हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब, ये कोई अटेम्प्ट करना पसंद करेगा? किरण जी आप पसंद करोगे अटेम्प्ट करना? Yep. I've been trying to find a job for a long time, and the constant rejections are making me doubt my skills and worth. You can, I don't know, you can just say कि होता है, you मतलब सजेशन नहीं देना है कि यू कैन जस्ट एम्पथाइज कि आई नो इट हैपेंस कि जब तुमको जॉब नहीं मिल रही है तो डेफिनेटली यू विल स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ, बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। कि तुमको आगे चल के आई डोंट नो वेदर दिस विल कम इन अ सजेशन और व्हाट, कि इफ यू कीप ऑन लुकिंग यू विल फाइंड अ राइट जॉब। So it is certainly, I don't think it's a suggestion. यहाँ पे rather it is something you're trying to say to motivate the person. पर इसके पहले आपने एक और चीज कही किरण जी की होता है बहुत बार हम ऐसे बोलते हैं कि कोई इंसान एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है आपके साथ और हमको बोलते हैं कि हाँ ठीक है होता है, तो उस समय में भी उस इंसान को ऐसा लगता है कि ये मेरी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस कर रहे हैं या फिर नॉर्मलाइज कर रहे हैं। हाँ बट उसके बाद आई कैन लाइक यू कैन से कि मैं समझ सकती हूँ कि when you are not finding a job तो definitely you will start doubting yourself. yes, that उसी पे आ रहा हूँ मैं भी। आपने ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही कि मैं समझ सकती हूँ, यू आर ट्राइंग, आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि आप क्या समझ रहे हो उसमें से, राइट? क्योंकि हम बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है मैं समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ, बट यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि मैं क्या समझ सकती हूँ, इससे मैसेज कन्वे होता है। कहा वो इन्होंने सुना और वो जेन्युइनली मेरी बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं।
और that's really amazing. Thank you, किरण जी. Thank you. नेक्स्ट जो थर्ड वाला है वो कौन अटेम्प्ट करना चाहेगा? कम ऑन, वी आर 32 पीपल एंड सिर्फ 3 सेंटेंस बाकी है. Okay, we have मे some. भी आपको नाम लेना पड़ेगा ग्रुप में से किसी. फिर लेट्स डू दैट. Okay, let's do a little test कि हम सब active है या नहीं, ध्यान दे रहे हैं या नहीं. So, Dr. Swati, would you like to try the third sentence? पापा को बता रही, पापा आ गए. हाँ. गंगाधर जी यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे आई कांट इवन इमेजिन व्हाट यू आर गोइंग थ्रू. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. आप यहाँ पे एक्नॉलेज भी कर रहे हो उनकी फीलिंग्स को. आप यहाँ पे बिल्कुल बोल रहे हो कि ये जो आपके साथ हो रहा है वो आप ही को पता है, आप में भी जो बीत रही है आप ही को पता है. सो अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आप नॉर्मलाइज नहीं कर रहे हो उस जो सामने वाला इंसान इश्यू प्रेजेंट कर रहा है वो. So third wala was attempted by Gangadhar ji. Okay. More two to go. Come on. I mean, हम सब ने हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस किया है. So what you wish you would love to hear from someone when you were going through a heartbreak or your first heartbreak? Sometimes just being with someone also helps. Yes. Yeah. Very true. Yeah, I know it's difficult, and but I know you are very strong also. Yeah. So maybe you can overcome this. Yeah. So यहाँ पे you are trying to tell me, I know you can do it. Again, थोड़ा सा motivation हो गया. That's good. That's great. या फिर ऐसे भी चीजें या फिर सिचुएशंस साथ में ढूंढना या सोचना कि पास्ट में ऐसी कौन सी डिफिकल्ट सिचुएशन थी जहां पे आप ओवरकम कर पाए. जैसे कि आपने कहा कि हाँ मुझे मालूम है कि आप स्ट्रांग हो. तो पास्ट में ऐसा क्या उन्होंने और चीजें ओवरकम की है जहां पे उन्होंने दिखाया है कि वो स्ट्रांग थे. ये भी आप कर सकते हो. जस्ट टू Right. Yeah, just Right. to Right. remind Right. you. Yeah. Thank you. Thank you. कभी कभी पूछ भी सकते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ थोड़ा. Yes. Yeah, of course. Yeah. क्यूरियोसिटी भी होती है Curiosity, और वो क्यूरियोसिटी एक केयर की तरह भी आ सकती है. उस इंसान को भी समझ में आता है कि इन्हें मेरी बात में इंटरेस्ट है. वो समझने की कोशिश कर रहे हैं तो मे बी वो थोड़ा सा और ओपन अप होके बोल सकते हैं आपके साथ. राइट. नेक्स्ट स्लाइड. Yeah. Oh, sorry. द गिफ्ट ऑफ एम्पैथी. एम्पैथी बेसिकली क्या होता है, जैसे इंग्लिश में काफी बहुत बार यूज करते हैं, ट्राइंग टू गेट इनटू समवन्स शूज. तो जिसका मतलब है कि हम सामने वाला इंसान जो हमको प्रॉब्लम्स बता रहा है और उससे रिलेटेड 1 से 2 एग्जांपल्स दे रहा है, वहाँ पे हमको उनको उन पे क्या बीत रही होगी, उनको क्या फीलिंग्स आ रही होगी. तो ये हमको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना होता है. फॉर एग्जांपल कोई कहता है हमको, एक क्लाइंट का समझो हमको कॉल आता है, वो कहते हैं कि मुझे मेरे स्पाउस ने, मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया बिना कुछ बताए. पहले तो उन्होंने बहुत प्रॉमिस किया था हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर इन्होंने मुझे छोड़ दिया, अभी हमसे मुझसे बात नहीं करते है करती है. तो यहाँ पे हम बोलने की कोशिश कर सकते हैं कि आपके साथ आपको धोखा फील हुआ है, आपको ऐसे लग रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है.
और शुरू शुरू में ऐसी प्रोमिस की गई थी आपके साथ जिसके भरोसे के ऊपर आपने आगे का रिलेशन बढ़ाया, तो आप यहाँ पे आपका भरोसा भी कहीं ना कहीं टूट गया है। सो दिस इज एम्पथी। अभी मुझे सामने वाले ने कहा नहीं कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरा भरोसा टूटा है, बट हम समझने की कोशिश कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंस को। पूरी तरीके से हम नहीं समझ सकते डेफिनेटली, बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई। गिफ्ट ऑफ एम्पथी अभी कैसे कर सकते हैं? अंडरस्टैंडिंग अदर्स, लिसनिंग, ऑब्जर्विंग, पुटिंग आवरसेल्व्स इन देयर शूज, उनको समझने की कोशिश करना, ध्यान से सुनना। पहली बात तो कि ट्रूली बी देयर फॉर देम, पूरी तरीके से उनके साथ रहो। कि ये ऐसे नहीं कि सामने वाला रो रहा है और आप यहाँ वहाँ देख रहे हो, दूसरा काम कर रहे हो, वो बहुत थोड़ा सा बुरा फील हो सकता है, राइट? सेकेंड थिंग इज बिल्डिंग ट्रस्ट, भरोसा, एक रैपो और भरोसा बिल्ड करना, एक ऐसी स्पेस क्रिएट करना कि जहाँ पे उनको बिल्कुल जज्ड फील ना हो, उनको ऐसा लगे कि ये इंसान मुझे सपोर्ट कर सकता है। और सपोर्ट एज इन नॉट सोल्यूशन देके, बट इमोशनल सपोर्ट दे सकता है, जो कि काफी अंडररेटेड है। इमोशनल सपोर्ट को हम ज्यादा ज्यादा डिस्कस ही नहीं करते पहली बात, राइट? एंड थर्ड थिंग इज वैलिडेटिंग इमोशंस, एक्नॉलेजिंग एंड केयरिंग अबाउट अदर्स फीलिंग्स। ऑफ कोर्स कि आपके साथ ये चीजें हुई है, ऑफ कोर्स आपका धोखा, आपको लग सकता है कि आपके साथ धोखा हुआ है। आप गलत नहीं हो इस चीज में, फिर इसमें आपकी गलती नहीं है कि किसी ने आपके साथ ऐसा किया है, राइट? कुछ चैट बॉक्स में आया, राइट? या आफ्टर एक्सप्रेसिंग ओके, जितेंद्र जी आप एक एग्जांपल दे सकते हो? जितेंद्र जी पूछते कि सर कौन। सर जी सर जी। सर सर एक्चुअली कई बार टेलीफोनिक काउंसलिंग के दौरान ऐसा होता है कि मैं समझ सकता हूँ आपके साथ जो परिस्थिति है वो मैं खुद महसूस कर रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो वहाँ क्लाइंट बहुत जोर से बोलता है, आप क्या समझेंगे, खाक समझेंगे, कुछ नहीं समझ में, हमारे साथ जो बीत रही है वो हम जानते हैं। जी जी बिल्कुल, जी 100%। जी 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 बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और जब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी तभी भी ये सेम चीज हमने भी पूछी थी हमारे ट्रेनर्स को। तो कैसे होता है ना कि आपको, जैसे मैंने कहा कि एम्पैथी का मतलब होता है कि सामने वाले की फीलिंग समझने की कोशिश करना, पूरा नहीं समझ सकते हो ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता आपने कैसे हैंडल किया होगा, या फिर मैं सिर्फ इमेजिन कर सकता हूँ कि आप पे क्या बीती होगी। सो ये कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं यहाँ। ये बोलने से हम सामने वाले को भरोसा भी दिला सकते हैं कि हम सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं। एट द सेम टाइम हम नहीं बोल रहे कि आई नो, ये मुझे सब पता है कि आपको क्या फील हो रहा है। आई थिंक यहाँ पे एक और ओके। चीज हेल्प करती है कि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, यस। इंस्टेड ऑफ मैं पूरी तरह से समझता हूँ ये बोलना, और विच इज नॉट ट्रू ऑल्सो। हम किसी को भी, कोई भी पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। मतलब फॉरगेट अबाउट टेलीफोनिक काउंसलिंग, सामने फेस टू फेस भी काउंसलिंग होगा, हम नहीं समझ सकते हैं कि सामने वाले पर क्या बीत रही है, वो किस सिचुएशन से जा रहा है। तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किस सिचुएशन से जा रहे हैं। आपसे बातचीत होने में मुझे और समझने में मदद होगी इस प्रकार से, डेफिनेटली। और वो भी कोई कोई सिचुएशन में तो ये नहीं बोला, जैसे अभी हितेश आपने एक आध सजेशन किए, तो उस प्रकार के सजेशन देना ज्यादा बेहतर होगा कि मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती, मतलब मेरे समझने के आप बहुत मुश्किल टाइम से जा रहे हैं, शायद हम लोग इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। ऐसा कुछ सेंटेंस कई जगह पे कि वाकई में अगर सामने वाले की दिक्कत इतनी बड़ी है, उसकी परेशानी या उसका कोई ऐसे बड़े हादसे से इंसान गुजरा हुआ है, तो वहां पे हमको ये एक्सेप्ट करना होगा कि मेरे साथ, मैंने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं फेस किया है जो चीज तुम जिस चीज से गुजर रहे हो। तो मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता हूँ कि आप किस प्रकार के दर्द को महसूस करते होंगे, पर हम कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की।
हमको बात करने की कोशिश करेंगे कि इसमें हम लोग मिलके कुछ इसमें से मार्ग निकल सकता है क्या, या हमसे बात करके कुछ आपको आगे दिशा मिल सकती है क्या। प्रधान। अमेजिंग पॉइंट। तो डॉक्टर रूपा यहाँ पे क्या है कि हम बिल्कुल भी पूरी तरीके से समझ नहीं सकते हैं, पर हम इसके लिए क्या कर सकते हैं आगे, इसके बारे में हम बिल्कुल बात कर सकते हैं, राइट। सो आपको कुछ डज दिस आंसर योर क्वेश्चन जितेंद्र जी? Yes, yes, sir. Thank you, sir. Thank you. So, टू मोर क्वेश्चंस डाउट्स, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे धृति इज टेलिंग, हाँ, गंगाधर जी इज टेलिंग it's difficult to empathize with someone with not so close, what to do exactly. So जब हम काउंसलिंग भी करते हैं तो जनरली से एडवाइस किया जाता है कि आप जिनको आप जानते हो उनके साथ आप काउंसलिंग मत करो, उनके साथ आप नहीं कर सकते हैं। बाय क्योंकि बहुत बार बायसनेस आ सकता है, बहुत बार हम सजेशंस दे सकते हैं, जजमेंट आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि कोई मेरा दोस्त है, मैं उसको बोल नहीं सकता हूँ कि कि हाँ मैं समझ सकता हूँ ऐसे वैसे, वो एक ऑकवर्डनेस भी आ सकती है थोड़ी बहुत। और यहाँ पे हम ठीक है, अभी मेरे को पता है तू, आई नो यू, मैं तुमको बहुत टाइम से जानता हूँ, इतना कुछ नहीं है, या फिर कुछ ना कुछ सोल्यूशन देके कहानी खत्म कर सकते हैं। हमारा जो इंटेंशन होता है अगेन बहुत अच्छा होता है, लेट्स नो डाउट। सो इसीलिए वी हैव प्रोफेशनल्स जिनसे आप बात कर सकते हो। सो दिस इज अ थिंग। और सेकंड क्वेश्चन इज, टू मोर क्वेश्चंस, दोनों ले लेते हैं। नहीं, एक ही क्वेश्चन, इट्स जो कमेंट। ओके। सो गंगाधर जी एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ डू आई नो इफ आई एम एम्पैथाइजिंग और सिंपैथाइजिंग। ओके, तो एम्पैथी इज, जैसे हमने डिस्कस किया, एम्पैथी क्या होता है, किसी की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करना और उसको वैलिडेट करना, राइट। एंड सिंपैथाइजिंग मतलब आप बोल रहे हो कि आपके साथ जो हुआ आप बेचारे हो, आपके साथ ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा उनको, हाउ डू आई से इट, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक इंसान जो है वो बाइक पे से जा रहा है, ठीक है, और वो गिर गया। तो यहाँ पे हम सिंपैथी ऐसे दिखा सकते हैं कि अरे अरे बेचारा गिर गया, इसके साथ परसों भी हुआ तो रोज होता है। यहाँ पे हम बेचारापन दिखा रहे हैं, हम सिंपैथी दिखा रहे हैं। वेर इन एम्पैथी में हम हो सकता है कि आपने तो हेलमेट भी पहना है और आप रूल्स भी फॉलो कर रहे हो, यहाँ पे खड्डे हैं इसकी वजह से आप गिर सकते हो। सो दिस इज एम्पैथी। हम उनको बेचारा नहीं बोल रहे हैं, जो उनका एक्सपीरियंस है उनको हम डाउन वैल्यू नहीं कर रहे हैं। वी कैन ऑल्सो से कि काफी पेनफुल हुआ होगा आपको गिरने के बाद, गिरना मतलब काफी लाइक अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। तो यहाँ पे हम उनके इमोशंस को वी ट्राई टू आइडेंटिफाई, या फिर जब वो शेयर कर रहे हैं तो ध्यान देना कि वो क्या बोल रहे हैं। और सिंपैथी में ऐसा होता है कि वी फील बैड फॉर देम, एंड एम्पैथी इज we try to understand what they might be feeling right now, like being in someone's shoe, इसको कहते हैं empathizing। जैसे कि अभी एक इंसान है, उसके लाइफ के बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वो हम उनके साथ खड़े रह के, वो हमारे सामने प्रॉब्लम्स को पूरा दिखा रहा है सामने, तो उनके साथ उनकी स्टोरी देखेंगे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एम्पैथी। ओके, तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था शेयर्ड एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो ये शेयर्ड एक्सपीरियंसेस होते क्या है, जब हम किसी चीज के बारे में ओपन अप होते हैं
अपने फ्रेंड से या फिर फैमिली या फिर कोई भी किसी भी पर्सन के साथ जब हम एक एक्सपीरियंस को लेके ओपन अप होते हैं, जैसे कि मैं बचपन में साइकिल करते करते गिर गई थी और मैंने मेरा हाथ फ्रैक्चर कर लिया, तो अगर किसी और ने ये एक्सपीरियंस किया होगा तो वी हैव अ वेरी कॉमन ग्राउंड टू अंडरस्टैंड ईच अदर रियली वेल। सो उसको बोलते हैं शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। इट्स लिटरली कि जो लिखा है उसका मीनिंग वही है कि जो हमने शेयर किए हुए एक्सपीरियंसेस है, कॉमन एक्सपीरियंसेस। और इनसे क्या होता है हाँ शेयर एक्सपीरियंसेस से? हाँ, तो इनसे एक इंस्टेंट बॉन्ड हो जाती है, क्योंकि हमें समझ में आता है कि हाँ सामने वाले इंसान ने भी ये गो थ्रू किया है, तो शायद वो हमें समझ पाए, वो ऐसी चीजें समझ पाए जो दूसरों को बोलकर भी वो समझ नहीं पाते। और जब ये शेयर्ड एक्सपीरियंसेस के बारे में जब पता चलता है एक दूसरे को, तो वो एक जो ब्रिज होता है वो क्रिएट होता है एक दूसरे के साथ, जो कम्युनिकेशन है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाती है, क्योंकि उनको एक मीडियम मिल जाता है कि हाँ यहाँ से हम वो बात बता सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी कॉन्फ्रेंस में गए और आपने आपकी प्रैक्टिस में कुछ तो एक्सपीरियंस किया जो काफी सिमिलर था दूसरे डेलीगेट के साथ, तो जब वो आप एक कॉन्वर्सेशन करते हो वो एक इंस्टेंटली एक कनेक्शन हो जाता है, लाइक एक पैशन एंड एंजॉयमेंट होती है वो, तो उससे एक इंस्टेंट बॉन्ड बन जाती है। एंड देन सिमिलरली एम्पैथी, अभी शेयर्ड एक्सपीरियंसेस है तो ऐसी एक जानकारी होती है जो सिर्फ एक दूसरे को जल्दी समझ में आ जाए, तो उससे एम्पैथी भी बिल्ड जल्दी हो जाती है। एंड यूनिटी, अभी एक कॉमन ग्राउंड हो जाता है जिससे एक दूसरे के डिफरेंसेस के आगे भी हम देख पाते हैं, भले ही अभी इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मतलब लाइक अभी मैंने शेयर किया कि एक शेयर्ड एक्सपीरियंस होता क्या है, तो आपको क्या लगता है कि एक यूनिटी ये जो होती है वो एक शेयर्ड एक्सपीरियंसेस में कैसे हो सकती है? जो एकता होती है शेयर्ड हाँ एक्सपीरियंस में, वो कैसे हो सकती है? ये कभी कभी शेयर्ड इंटरेस्ट होते हैं, अपनी जो वैल्यूज होती है, अपने जो गोल्स होते हैं, वो भी हो सकता है शेयर्ड एक्सपीरियंसेस में। और ये जो वैल्यूज और गोल्स जो होती है ये काफी जो सर्विस लेवल से जो कनेक्शन होता है वो एक डीपर लेवल के कनेक्शन में चला जाता है। नहीं। और जैसे कि ऊपर ही यूनिटी के बारे में हमने अभी बात की, तो ये जो बैरियर होती है कि बैरियर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी एक जजमेंट भी होती है किसी इंसान को लेकर, तो वो जजमेंट को तोड़ने में भी काफी इम्पोर्टेंट होता है शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, कि हाँ ये तो ये मेरे से काफी अलग है तो इसके एक्सपीरियंसेस अलग होंगे, तो हम खुद को उनसे कनेक्ट नहीं करने देते। बट जब हमें पता चलता है कि हाँ इनका भी कुछ मेरे जैसा ही हुआ था, तो वो एक बैरियर जो होता है वो टूट जाता है एंड वी आर इंस्टेंटली एबल टू कनेक्ट विद ईच अदर। तो shared experiences are also very vital to make a meaningful connection. बहुत बार हम बोलते हैं कि आपके साथ ये जो घटना हुई वो मेरे साथ भी हुई है, तो बिना कुछ बोले एक क्लिक हो जाता है दोनों के बीच में कि अ, इनको पता होगा कि मेरे साथ क्या हुआ होगा, इनको पता होगा मुझे कितना दुख पहुंचा होगा। इससे जो हमारा टॉपिक है मीनिंगफुल कनेक्शन, वो थोड़ा सा यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि स्ट्रांग हो जाए जो रिश्ता है हमारा उनके साथ, इवन दो हम उनको पहली बार मिले हो। इसमें कुछ है यह थोड़ा सा जो काफी सारे डॉक्टर्स इस आज की मीटिंग में जुड़े हुए हैं उनसे रेलेवेंट एक उदाहरण मैं शेयर्ड एक्सपीरियंस के बारे में बोलना चाहूंगी। स्पेशली जैसे सर्जन हैं, तो किसी सर्जन में मतलब सपोज वो शोल्डर की सर्जरी में एक्सपर्ट है, तो आगे कोई नया पेशेंट उसके पास जब शोल्डर की सर्जरी में आता है, तो दैट डॉक्टर gives that patient reference of other old patients whose surgery
doctor has performed, and they by talking to those people, those previous surgery post surgery patient के साथ बोलने से, बात करने से, ये पेशेंट के अंदर थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, ये लोगों का सर्जरी ऐसे अच्छे से हो गया, वो लोग सर्जरी के बाद इतने अच्छे से रिकवर हो गए. तो या डेफिनेटली एक दूसरे को समझ पाते हैं, क्योंकि शेयर्ड एक्सपीरियंसेस की वजह से एम्पैथी भी होती है, जनरेट होती है, जिसके कारण एक दूसरे की अचीवमेंट भी वी टेंड टू अप्रिशिएट की एंड हाईलाइट आल्सो. So that is also very that is also very nice and important. So moving on to next slide, I guess that is it for today. Yeah. Questions अगर आपको होंगे तो please feel free to ask us, or else if you want to have a discussion or want to add anything, please let us know. Anything जो आज पूरा सेशन हुआ इससे रिलेटेड कुछ भी आपको सवाल हो in any languages, हिंदी, इंग्लिश, मराठी पण चालेल, तर तुम्ही बोलू शकता. Yeah, you said about showing empathy to the probably the patient or whosoever is asking it. But how do you continue the conversation? Because after a while, probably if the patient doesn't respond, then how do you keep going? Rather, my question is. Okay. So can you think of an example? थोड़ा सा elaborate. Can you? अच्छा, हाँ. तो सपोजिंग एक पेशेंट है, वो कह रहा है कि मैं अभी एग्जाम में फेल हो गया हूँ. ठीक है. He has recently failed in his exam and he is little bit worried and depressed. Then he comes to your clinic saying कि मेरा सर में दर्द है, whatever it is, he is feeling low. और फिर आप उसको बोलते हैं कि क्या हुआ, recently क्या है, something of that sort. And थोड़ा dig करने के बाद या कुछ और करने के बाद, probably then you find out probably this could be a reason, whatever it is. तो then you say after a while, ठीक है, हाँ मेरा ऐसा ऐसे हुआ, थोड़ा ऐसे हुआ, he gives you a hint. तो sometimes after saying हाँ probably नहीं ठीक है, फिर से आप एग्जाम पढ़ाई चालू करो या फिर से अभी नेक्स्ट एग्जाम के लिए करो या whatever, then you are again suggesting, which we don't have to. So my point is, you can empathize, you don't have to sympathize, but you can empathize to a certain extent only. Yeah. And what if the other person just keeps mum even after that, or probably we reach a deadlock, then how do we go about it? Because there's nothing probably more you can add, or probably you just have to wait probably till the other person finishes. Okay, right. Agreed. So I'm assuming कि आप एक डॉक्टर हो और आपके पास एक पेशेंट आता है. Right. कुछ सिर दर्द वगैरह कुछ प्रॉब्लम है और ये भी चीजें आपको बोल रहा है. तो सिंपली यहाँ पे हम what we can do is empathize उतना ही कर सकते हैं हम कि आपने I know मुश्किल हो सकता है आपके लिए कि आप एग्जाम्स में आप जो भी फेल हो या फिर कम मार्क्स आए हैं, थोड़ा सा आप वहाँ पे बता सकते हैं कि मुश्किल रहा होगा आपके लिए और आपके मे बी आप कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हो कि आपने इस बारे में किससे बात की है, क्या आपने क्या ट्राई किया इसके लिए, इसको थोड़ा बेहतर करने के लिए. ओके, तो यहाँ पर उनको सजेशन भी नहीं दे रहे और एम्पथाइज भी कर रहे हैं. उसके बाद आपका जो रेगुलर है कि आप उनको कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करना चाहते हो वो कर सकते हो. उसके बाद अगर आपको लगता है कि इनको एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है तो आप उनको वो भी कर सकते हो. बिकॉज अगेन वी हैव ऑल ऑफ अस हैव थोड़ा सा लिमिट्स, थोड़ा सा बाउंड्रीज हम इन एरियाज में काम कर सकते हैं. I would also like to add. गंगा, हाँ, yes, please. So like you said, what do we do after empathizing and there is a block, like dead, अभी आगे सब कुछ बोल के हो गया तो आगे क्या बोले. So sometimes sharing a comfortable moment of silence is also very helpful, because at times when you're sharing or when you're asking and reflecting together, the patient or the client is thinking
So they also need some time to, you know, think and then maybe talk to you. So वो silence आना is completely natural, I think, and like gives them some time to think about the conversation, and it gives you also the time to think of the conversation. So being comfortable with the silence is also something that you can practice. Yes, silence needs to be practiced, I suppose, because we Yeah. are generally very sort of, fearful about the silence. अगर silence आ जाता है तो we feel अरे there's, so we need to be practicing silence. Yeah, of course. Yeah. We feel helpless. We feel as if we are unable to help the next person if we are silent. Yeah. और डॉक्टर्स के बारे में तो बहुत ज्यादा मुश्किल जाता है साइलेंस को मेंटेन रखना. तो बट एक चैट बॉक्स में इसने एक सजेशन दिया है कि it's not curiosity is good, that is one good exercise to मतलब not asking too many questions and to avoid even मतलब now of course डॉक्टर नितिन मतलब हम लोगों को कि हम वहाँ पे आर वी इन रोल ऑफ अ डॉक्टर और अ काउंसलर, ये एक तो पहली बात खुद के लिए भी और क्लाइंट के लिए भी समझना पड़ेगा. क्लाइंट अगर हमको डॉक्टर समझ के हमसे अपेक्षा कर रहा है तो डेफिनेटली देन डॉक्टर के रोल में तो इजी है, वी आर एक्सपर्ट इन इट. बट काउंसलर वाले काउंसलिंग के रोल में अगर हैं तो दिस इज नेक्स्ट मतलब वो यस दैट साइलेंस एक्सरसाइज इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट पर्सन एंड देन आस्किंग मतलब जहाँ पे आप नहीं चाहते कि आप उसको डायरेक्शन दे तो कि आप क्या सोच रहे हो अभी इसके आगे फिर क्या करना है, भले मार्क्स कम मिले हैं या फेल हुए हैं तो आप इस चीज के बारे में अभी आप किस ढंग से देखते हो इसको, या इसके बारे में आगे क्या सोच रहे हो, आप कुछ सोचा है क्या. Maybe take some time to think over it and then we can talk further. ऐसा मतलब now this will be depending upon कि कितना कौन से स्टेज ऑफ ग्रीफ में है वो. सडनली अभी रिजल्ट लेके आपके पास आया है या हफ्ता हो गया है तो उस हिसाब से let him take a shot. और if he has come with some preparation in his mind कि ओके मुझे आगे ये करना है या मैं ये सोच रहा हूँ, then he will speak about those things to you. Yeah. And उसमें से कभी-कभी मतलब मैं hypothetically बस I'm just going on with my thoughts in this कि अगर वो कुछ चीजें बोलता है उसमें से एक आध चीज में अच्छा इससे रिलेटेड ये वाली हेल्प मेरे कॉन्टैक्ट से या मेरी तरफ से ऑफर हो सकती है तो आप चाहें तो जब भी आप मुझे बताएं ये हेल्प के लिए हम लोग जा सकते हैं या प्रोवाइड कर सकते हैं इस प्रकार का कॉन्टैक्ट या हेल्प, ऐसा कुछ थोड़ा. But yes, it's a very nice exercise to practice counseling with our patient. Yeah. थोड़ा सा time देके. Yes, and it's also interesting, right, नितिन जी, अभी आप एक डॉक्टर हो, but it's very interesting to see कि आप वो कितना you are eager to understand कि you know अभी मैं क्या करूँ, अभी क्या करना चाहिए. That's also very interesting. Yeah. But हमारे भी कुछ ना कुछ बाउंड्रीज होते हैं, कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे हम थोड़े से we have expertise in. Also we are trying to understand more and more. वो भी काफी इंटरेस्टिंग है. Thank you so much for your point, नितिन जी. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay, so we have one more question from Sakshi. She's asking, is it necessary that we also have to experience empathy from someone first and then we will be able to empathize with others? So, okay, so I think she's asking, does empathy work both ways, if I'm not wrong? What do you think, Sakshi? हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि हमें भी वो एक्सपीरियंसेस मतलब एम्पैथी किसी ने फील कराई हो, वो एक्सपीरियंस हो, उसके बाद ही हम किसी और को एम्पैथाइज कर सकते हैं, राइट? अगर हमारे साथ ही बैड एक्सपीरियंस हुआ है, किसी ने एम्पैथाइज नहीं किया है या अलग रिस्पॉन्स दिया है हमारे वर्क पे, तो फिर हम मतलब दूसरों को एम्पैथी कैसे शो कर सकते हैं? So you know हमने कुछ देर पहले इस बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी. Thank you for this question, Sakshi.
द थिंग इज कि हम बहुत बार हम पूरी तरीके से हम नहीं किसी का पेन एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, किसी का दुख नहीं समझ पाते हैं, बट ऑल्सो व्हाट वी कैन डू फ्रॉम आवर साइड इज ट्राई टू पुट आवरसेल्फ इन देयर सिचुएशन, एंड वो जैसे दुनिया देख रहे हैं, वो जैसे प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, हम भी वैसे देख के जो फीलिंग्स उनको आ सकती है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हुआ होगा. सो दिस इज हाउ वी ट्राई टू कन्वे एम्पैथी. इट्स नॉट हर बार हम हर चीज समझ सकते हैं. दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर लाइक एनी ह्यूमन बीइंग. So yeah, that's it. Anything else you want to add, Divya? Yeah, like you said कि अगर उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है एम्पैथी, तो हम कैसे कर सकते हैं एम्पैथाइज विद अदर पीपल. आई थिंक the first thing that we should try to practice is to create a non-judgmental space. मतलब कि हम हमारा जो व्यू है या फिर जजमेंट है किसी सिचुएशन या इंसान को लेकर, वो कॉन्वर्जेशन के अंदर ना आए, या फिर आप जो आपका मतलब आपको कन्वे करना है उसके अंदर ना आए. वो भी अगर हमने ट्राई किया जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि हाँ कि क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं इनके, ये जानना, ये भी एक स्टेप हो सकता है टुवर्ड्स एम्पैथी. And of course it's a skill. Empathy is a skill, so you can eventually build it, with time and practice. I hope it answers your question. Okay. So yeah, Dhriti would love to say something to everyone. So yeah, over to you, Dhriti. थैंक यू दिव्या एंड हितेश, इतना इंसाइटफुल और हेल्पफुल सेशन करने के लिए थैंक यू फॉर इंक्लूडिंग अस इन दिस कॉन्वर्जेशन एंड थोड़ा ब्रेक डाउन करने को. ये काफ़ी इम्पोर्टेंस के लिए, और हमको लगता है सबको कि हम लोग एक्सपर्ट्स हैं कनेक्शंस बनाने में, पर हम भूल जाते हैं कैसे कब किसी की बात सुननी है या कब एम्पैथाइज करना है. सो थैंक यू फॉर टेकिंग अस थ्रू दैट. एंड इन एडिशन आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन कि आई थिंक इन टर्म्स ऑफ, चाहे अगर किसी को यहाँ थोड़ी दिक्कत आ रही है कनेक्शंस बनाने में या एनी सॉर्ट ऑफ मेंटल और इमोशनल डिस्ट्रेस दैट यू आर गोइंग थ्रू, वी हैव अ फ्री मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन जो मंडे से सैटरडे 12 से 8 काम करती है. तो मैं उसका नंबर चैट बॉक्स में डाल रही हूँ. सो प्लीज फील फ्री टू कीप दिस नंबर विथ यू, शेयर इट विथ एनीवन यू नो जो जिनको कोई भी तकलीफ हो रही है. कुछ भी हो सकता है, वर्क स्ट्रेस हो सकता है, फैमिली में इश्यूज, कम्युनिकेशन स्ट्रगल्स, एनीथिंग लाइक दैट. इट्स ऑलवेज बेटर कि जितना जल्दी हो सके दे कैन रीच आउट फॉर सपोर्ट, एंड इट्स अ कंप्लीटली अनोनिमस स्पेस. तो बिना अपना नाम बताएं कुछ भी, यू कैन जस्ट टॉक, एंड काउंसलर्स लाइक दिव्या, हितेश एंड द रेस्ट ऑफ आवर टीम आल्सो विल बी मोर देन हैप्पी टू help you manage and contain your emotions. And additionally, I'm also putting some of our social media channels यहाँ ताकि अगर any following sessions that are happening या any mental health tips, we do share them pretty regularly on these social media channels. So please do follow them and share it with people around you, क्योंकि ये conversations करना काफ़ी important है. And it's great कि आप लोग सब अभी participate कर रहे हैं. So please continue participating and sharing it with as many people around you that you can. And with that, we're going to close this time session. These happen on a monthly basis, so stay tuned for the rest. Yeah. Thank you. Thank you everyone. Thank you so much for and yes, I can see a lot of doctors here. So again, नितिन जी ने जैसे बोला कि डॉक्टर्स भी बहुत बार ट्राई करते हैं थ्रू counsel people. So yeah, that's interesting, and thank you so much everyone for joining us and attending the session. Yeah. Take care, everyone. See you in the next month. Next month. Okay. Yeah. Bye. Bye bye.